What were you doing in the last class? Does anyone tell me? What were we doing in the last class? Antishita? Sir, in last class we learned about conversion. First we learned about what are pure non-terminating repeating numbers and mixed non-terminating repeating numbers, and then we learned about conversion of pure recurring numbers into rational numbers. Sir, hello, sir. You can raise your hands, okay? जैसे भी doubt है, you can raise your hands. I'm there waiting for you in the chat section. Whomsoever having any doubt, they can raise your hands. I'll come to you for the doubts. Priya. Yes, Priya. Manthan. My doubt is in this one, the sum number what was that number? Sir, sum number 10. Sir, I am not understanding one of a sum from that. Sum Sum number number 3. 10. अरे ऐसे 3 10 नहीं, मुझे क्वेश्चन बोला कर. व्हाट इज द क्वेश्चन? 5 upon write the numbers in ascending form. 5 upon 8, 11 upon 15, 17 upon 24, 7 upon 12 and 19 upon 30. Sir, क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्लास में किया हमने क्वेश्चन. क्लास में हमने क्वेश्चन किया है असेंडिंग. पहले एलसीएम मेथड से यू हैव टू make the LCM same, then you have to arrange in ascending or descending order, whatever. I made everything proper, but then do I have to, like, it's for common, do I have to write the numbers like it's 70 upon 120? So do I write it 7 upon 12 and that all? दोबारा एक बार बोलेगा? Will you repeat the statement, my please? question is not only for that sum, it's for all common sums are ascending and descending. So see, if you get a sum of like 5 upon 7, the sum which I told you, if I get that sum and then I got the answer, it's like 70 upon 120, 75 upon 120, 76 upon 120, 85 upon 120 and 88 upon 120. So should I need to bring it back to the form of like 5 upon 7 upon 12, 5 upon 8, 19 upon 13? Wait. Listen. See, यहाँ पे we'll have objective questions only, okay? But in the case of your school, it will depend upon the school teacher what they are asking you to do, okay? For me, it's fine in whatever form you are keeping your numbers, but in case of school, it's up to them. Okay, you have to convert back to the. Actually, I don't have this in school. I don't just have in the school. I don't know. For now, I don't have it. Okay, that's fine. For this is just for understanding. As of now, the ascending and descending is just for understanding. Okay, these are the basic concepts only. You will not know. Will ask in objective. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Next, Abhinav. Abhinav. सर इससे पहले मैंने क्वेश्चन को रॉन्ग किया था ना सर. सर आपने सर इसके पहले वाले में सर आपने बोला था कि वो आंसर 5 है और आपने कुछ दूसरा आंसर बोला था. तो सर उन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है? कौन सा क्वेश्चन ये तो बता दे. इससे पहले वाला पहले को क्या करूं मैं? सर क्वेश्चन 14 का 9th. ये 7 1/2 minus 6 2/3 minus 5 1/6. हाँ सर उसका आंसर क्या था? 5 ही था ना. तो सर उससे पहले आपने कुछ और आंसर बोला था ना. हाँ वो गलत था. कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी. ओके सर, थैंक यू. मंथन फिर से कितना डाउट आ गया? तो रुक जा सुकृति. सर
I have a doubt in level 2 third question. Level 2, wait. Level 2, third question. Okay. Sir, in that 24 trousers of equal size can be prepared in 54 meter of cloth. What length is required for each trouser? तो सर हम लोग को इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के कि डायरेक्टली डिवाइड करने का है? डायरेक्टली डिवाइड करोगे तब भी तो फ्रैक्शन फॉर्म ही आएगी ना. किसी को Okay, भी sir. आप कैसे भी डिवाइड करोगे फ्रैक्शन ही होगा वो. ओके. Okay, sir. प्रिया, आई एम ट्राइंग टू अनम्यूट यू बट नहीं हो रहा है. दिशिता. हाँ दिशिता. सर डिड यू आपने वो मिक्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स का रैशनल नंबर से कन्वर्ट करना नहीं सिखाया? सिखाया, अभी नहीं बताया, आज करेंगे. ओके सर. Yes. Samriddhi, you gave us homework to revise the whole chapter and check up for the visibility. Besides, you know what we learned in the last class. That's fine. आज कर लेना. Priya, raise your hands. I'm trying to unmute you, but you are not happy. It's not happening. You can write your doubts in the chat section if you want. दिशिता, किसी को डाउट है? चैट सेक्शन में आगे बढ़े. Is anyone having any doubts or should we move further? Okay, that's fine. Okay. First of all, in the last class, we are doing conversion of mix pure recurring. Okay. So I'm writing some examples, just solve them. You have to convert into fractional form. Just check your screen. I'm sharing those. अरे यार तुम लोग मानोगे नहीं ना, मतलब 1 मिनट में है ना रुकूंगा नहीं और कितना स्टार्ट हो जाऊंगी. I'm writing few questions, just convert into pre-value form. ये रेड मार्कर को जो मैं क्लास से भगा दूंगा जिसने चलाया अगली बार. ठीक है. Our first question is 46.59, 59 के ऊपर बार है. Second question is 123.169 बार plus 3.148 बार. दिशिता वेट. किसी ने हाथ खड़ा कर रखा है क्या? Your first question is, wait. First question is 46.59 bar. Second question is 128.169 bar plus 3.148 bar. Yes, Dishita. सर मतलब जो सेकेंड एग्जांपल है उन दोनों नंबर्स को ऐड करना है ना? ऐड करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ऐड करना है. ओके सर. मंथन. सर एडिशन मुझे समझ नहीं आया. डू यू मीन दैट 46.59 का जो भी आंसर होगा प्लस 123.169? अरे नहीं, फर्स्ट पार्ट तो अलग से 46.59 है, सेकंड पार्ट में दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ऐड करना है. अच्छा सर. ओके सर. आई थॉट दैट दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड. थैंक यू सर. नहीं, वेलकम. कन्वर्ट करो, सब लोग ट्राई करो.
Ayash, Sir, I didn't understood what to do. you were present in the last class? Yes, sir. लास्ट क्लास में लास्ट आर्टिकल क्या पढ़ा था हमने? सर हमने प्योर मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को प्योर में करना सीखा था. तो ये पहला वाला जब प्योर का एग्जांपल है तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. हाँ. दैट इज अ क्वेश्चन. यस सर. स्क्रिबलिंग दिख तो रहा है यार, स्क्रिबलिंग किसी गधे ने कर दी है. फर्स्ट प्रेफर्ड स्क्रिबलिंग किए हैं. व्हाई इज देयर स्क्रिबलिंग इन द फर्स्ट वन? अरे आरुष, क्या क्या इतना सोचना है? स्क्रिबल किया हुआ तो दिख रहा है ना क्वेश्चन. हाँ, फर्स्ट वन इज 4613 अपॉन 99. सेकंड वन भी कर दो फटाफट. नहीं, सेकंड का आंसर गलत आ रहा है. Second में you have to add both the numbers 123.169 and 3.148. You have to add. हाँ तेरा सही है. आयुष गोती, it's correct. Nikita, it's wrong. Ronak, it's wrong. Angat, correct. I'm sharing the answers, okay? चेक करो किसी को प्रॉब्लम है, पूछो. हंसनी. हाँ हंसनी. सर आप हाँ. वही वाले पेज को वापस एक बार दिखा सकते हो क्या? कौन से पेज को? सर इसके पहले वाले पेज को. दैट वाज स्क्रीन बोर्ड, वो नहीं आ सकता वापस. और क्वेश्चन लिखे तो हैं यहाँ पे, तुझे उस वाले पेज से क्या मतलब है?
दोनों क्वेश्चन लिखे तो हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड। ओके सर, थैंक यू। के शर्मा, बोलते तो जाती थी के सर। शर्मा, यस, आपने क्वेश्चन में माइनस लिखा था ना? प्लस लिखा था। अरे सॉरी सर। किसी और को कुछ डाउट दोनों क्वेश्चंस में? वेरी इजी क्वेश्चन, सारा कुछ था नहीं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लिख लो, फिर मैं राइटिंग शेयरिंग 2 मोर क्वेश्चंस। हाँ प्रियल, यस प्रियल। So the answer should be 15191. नहीं, एडिशन चेक करो, गलत किया क्या मैंने एडिशन? हाँ। सही किया, सही किया है, Okay. चेक करो एडिशन। सब लोग चेक इट। नेक्स्ट हेडिंग डालना कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रिकरिंग टू रैशनल फॉर्म, P by Q फॉर्म या रैशनल फॉर्म। कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रिकरिंग टू रैशनल फॉर्म। कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रिकरिंग टू रैशनल फॉर्म। इसके बाद डन, ओके दैट्स फाइन। हाँ, तो नेक्स्ट लिखना कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रिकरिंग इनटू रैशनल फॉर्म। मिक्स्ड रिकरिंग इनटू रैशनल फॉर्म। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, अभी भी डाउट है? यस, सर डाउट नहीं है, पर आपने जो एडिशन किया है ना सर, सही है। सही है ना? हाँ थैंक यू। यस सर। हाँ, एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं। x इक्वल टू 4.16 खाली 6 के ऊपर बार है, खाली 6 के ऊपर बार है। आरुष, सर टॉपिक क्या है? कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रिकरिंग नंबर्स टू P by Q फॉर्म और रैशनल फॉर्म, कुछ भी लिख ले। हाँ ठीक है। कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रिकरिंग नंबर्स टू कन्वर्ज P by Q फॉर्म। सर डेफिनेशन कुछ नहीं है। डेफिनेशन वगैरह सब हो गई, कहाँ डेफिनेशन में बैठा हुआ तो होगी। ओके सर। हाँ मंथन, सर हमें डायरेक्टली एक्स से चालू करने का क्या पहले सम को लिखने का, जैसे कि 4.16 जैसे कुछ सम को नहीं लिखने का, डायरेक्टली एक्स से चालू कर। वेट 2 मिनट रुक जा। क्वेश्चन लिख लिया? हाँ कन्वर्ट। सब लोग क्वेश्चन लिख लो। ओके, देखो एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बाकी तुम खुद से ट्राई करो। सी, आदित्य जल्दी से डाउट पूछो, खत्म कर। यस सर मेरा डाउट है कि आपने लिखवाया x इज इक्वल टू 4.16 और 1 के ऊपर बार है कि 6 के ऊपर? अबे तूने क्वेश्चन देखा था, उसमें बार अच्छे से दिख रहा था किसके ऊपर है।
इसके सर ऊपर दिख रहा था मुझे, पता था। सर मुझे तो 6 के ऊपर लग रहा था, लेकिन हल्का बस सा 6 के डाउट ऊपर था। ही नहीं, 6 के ऊपर ही है। ओके सर। ठीक है। हाँ सर ठीक है, थैंक यू। सही। आप लोग सब लोग समझ लो कैसे करना होता है। सबसे पहले देखो, इन द फर्स्ट स्टेप मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया? कि 10 से डेसिमल के राइट हैंड साइड पे कितनी डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, एक सिंगल डिजिट है 1, उसके ऊपर बार नहीं है, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आ गया? 10x इक्वल टू 41.66666। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। अब मैंने वापस दोबारा 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? कि डेसिमल के राइट हैंड साइड पे कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है? एक डिजिट 6 के ऊपर बार है, दैट इज व्हाई मल्टीप्लाई अगेन बाय 10। तो अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, दिस विल बिकम 10x इक्वल टू 41.666। अगेन 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100x इक्वल टू 416.666. Now what you have to do? 2 minus 1. So 100 minus 10, 90x. 416 minus 41, 75. So x equal to 75 upon 90. सबसे पहले क्या करना है? x को जो नंबर है वो ले लो, फिर जितनी डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उसकी पावर 10 से मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल, there is only one digit after decimal which does not have bar. That is why I multiplied x with 10 to the power of 1 in the first step. In the second step, now in the first step, okay, 6, only one single digit is repeating again and again. That is how I again multiplied the equation with the power of 10 to the power of 1. Okay. क्या मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में? Okay, sorry. 416 minus 41. Got it. 375 आएगा वो, ठीक है। Got it, 375 आएगा वो। हाँ मंथन बोल। सर मेरे पास दो डाउट है। पहला डाउट ये है सर कि अगर हमारे पास नंबर होगा जैसे कि 4.12666 तो हमें 1000 तक नंबर को स्ट्रेच करके लेके जाना पड़ेगा। 4.2 4.12666। रिपीट कर क्वेश्चन एक बार। सर मैं आपको टेक्स्ट करके भेज सकता हूँ क्या क्वेश्चन? हाँ भेज। सर फिर वो नंबर है क्योंकि मेरे पास दूसरा सब कुछ ऑलरेडी है। अभी रुक जा, तो अभी करेंगे, रुक जा एक बार एक दो एग्जांपल कर ले फिर करते हैं। हाँ ए शर्मा। हाँ सर आपने ये 2 - 1 मैं समझा नहीं, 2 - 1 क्या है? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अच्छा ओ अबे लास्ट क्लास में तो किया था हमने सेम चीज। दिशिता। सर सेकेंड स्टेप में 110 आएगा ना? 100 कहाँ से आया? इक्वेशन 1 को मैंने दोबारा 10 से मल्टीप्लाई किया है। ओके सर। ओके। ओके आरुष। और मुझे क्वेश्चन है कि आपको इधर से 100x था तो वो 90x कैसे आया? 2 माइनस 1 का मतलब समझाना मुझे क्या है? हाँ वो पता है कि वो 416 माइनस 41 करना है। नहीं, 2 माइनस 1 का मतलब मुझे समझा क्या है? 2 माइनस 1 का मतलब 2 मतलब नीचे वाला 416.66 वो वाला। अबे 2 मतलब इक्वेशन नंबर 2, 1 मतलब वही इक्वेशन सर। नंबर 1। हाँ हाँ तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 90x हाँ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। हाँ अरे हाँ हाँ सर, पर लास्ट टाइम उधर 99 था ना। तो लास्ट टाइम पे 100 माइनस 1 हुआ करता था ना, यहाँ पे 100 माइनस 10 हो रहा है। ओ ठीक है थैंक। पूर्ति। सर इस सम को हम लोगों ने x और 10x से क्यों सॉल्व नहीं किया? यार ये एक्चुअली मिक्स रिकरिंग होते हैं ना। देख हमारा एम क्या होता है, डेसिमल के राइट हैंड साइड पे हमें रिकरिंग पार्ट चाहिए होता है बस। तो अभी स्टार्टिंग में जो हमारा x है उसके डेसिमल के राइट हैंड साइड में दे आर बोथ रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग पार्ट। 1 is not recurring but 6 is recurring. Okay, so इस वाले केसेस में एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाती है, जो फर्स्ट स्टेप है एक्स्ट्रा आ जाती है। ओके बाकी ऑलमोस्ट द प्रोसीजर इज सेम, जस्ट 1 स्टेप इज एक्स्ट्रा। ओके सर।
हाँ यश, सर वो 375/90 को हम हाँ वो 125/30 भी कर छोटा, सकते हैं। वो तो तू कर लेना छोटा मोटा सब। मंथन, सर मेरा डाउट था कि वो अ, आपने बोला था कि जो आंसर होगा वो 375 होगा, तो फिर वो नंबर भी x से ही माइनस होना चाहिए ना 100। आंसर x से क्यों माइनस करना होगा मुझे बता। सर क्योंकि हमने तुझे ये मेन पूरे सॉल्यूशन, नंबर भी ये x से नहीं, किया मुझे है। पहले बता ये सॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम है, इस वाले सॉल्यूशन में वो पूछ मुझे। सर मुझे वो डाउट नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आया आपको 375 किधर से मिला। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 416 माइनस 41। 416 अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। सर आरुष, हाँ आरुष, हाँ सर। हाथ खड़ा किया हुआ तूने। ओह सॉरी। अक्षत, हाँ सर, मुझे वो सेकंड वाले को सेकंड इक्वेशन में आपने कैसे किया वो मुझे समझ में नहीं आया। इक्वेशन 1 समझ में आ गई। हाँ सर। देख अब इक्वेशन 1 देख, इक्वेशन 1 में कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? एक। एक। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 10x क्या बन जाएगा 100x एंड 41.6 क्या बन जाएगा 416.6। ओ ओके सर, ओके। थैंक यू। सुप्रीति, सर वो 100x कैसे आया सर? 10 से मल्टीप्लाई किया ना फर्स्ट इक्वेशन को। ओके सर। सेम डाउट में क्या पूछना होता है, सेम कुशाग्र। सर मेरे को बस ये पूछना था कि सर आपने जो 10 में मल्टीप्लाई किया उसके बाद 100 ले आया, तो सर वो आपका एम था कि वो डेसिमल Aim, प्लेस के बाद। हाँ हाँ, खाली रिकरिंग पार्ट को रखना। यस सर, थैंक यू। अनुष्का, तो मुझे वो फर्स्ट स्टेप समझी नहीं। फर्स्ट स्टेप में तो बस 10 से मल्टीप्लाई किया। देख डेसिमल के राइट हैंड साइड पे कितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, एक डिजिट, हाँ इसलिए 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ। मैं ये सबने छाप लिया तो मैं हटा रहा हूँ। ओके, आई एम राइटिंग माय क्वेश्चंस ओवर द स्क्रीन। यार 21.05 और 5 के ऊपर बार है। सेकंड क्वेश्चन है 21.05, 5 के ऊपर बार है। वॉइस का करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने ना। हाँ तो मैं सॉल्व ही तो करना है, तभी तो लिख रहा हूँ मैं। वन 1.462 2 के ऊपर बार है। Solve these questions. ट्वेंटी 1.05 5 के ऊपर बार, 1.462 2 के ऊपर बार। हाँ बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चंस।
आया किसी का आंसर? फर्स्ट वन इज 1895/90. Okay, let's try. फर्स्ट आंसर इज 2084/90. किसी का आया क्या? फिर किसी का नहीं आया, क्या कर रहे हो? फर्स्ट आंसर सही निकालो. 2084 अपॉन, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, मेरी मिस्टेक है कुछ. रुको. सही है 1895/90. एग्जैक्टली करेक्ट हो सब लोग. हम्म, 1895/90 एग्जैक्टली सब लोग सही है. सेकंड थर्ड वाला भी कर दो फटाफट से. सेकंड का आंसर किसने? 1316/900 एग्जैक्टली. मंथन सही है. स्मृति गलत है. श्रेयांश करेक्ट. रौनक राज करेक्ट. पार्थ करेक्ट. अंगद सही है. हाँ दिशिता. सर फर्स्ट का आंसर 61/3 आ रहा है रिड्यूस करने के बाद. हाँ, that is fine. Reduction is a different thing. ओके सर. Yes. हाँ यश. सर सेकंड में अभी डेसिमल के बाद थ्री डिजिट से तो 1000 तक लेके जाना है. यस. सर तो फिर 1000 माइनस कौन सा इक्वेशन करना है, 2 या 1? मुझे पहले तो समझाइए, इक्वेशन समझाइए. सेकंड वाला एग्जांपल जो मैंने दिया है वो समझा कैसा आया? सर x is equals to 1.462 और नहीं, पहले मुझे एग्जांपल जो मैंने सॉल्व एग्जांपल समझाया था वो समझा मुझे कैसे किया था तुमने. मतलब हाउ सेकंड वाला जो फर्स्ट एग्जांपल था x इक्वल टू 4.16 बार, वो समझा मुझे. हाउ डिड यू डू दिस? मतलब सर समझा नहीं. कैसे किया है आपने 1.46 बार, सॉरी 4.16 बार फर्स्ट एग्जांपल? सर वहाँ पे 2 डिजिट से तो पहले हमने 10 से किया. क्यों किया 10 से? उसी डिजिट को फिर से 10 पहले से किया. क्यों किया 10 से वो समझाना मुझे. तो क्योंकि वहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है. तो 10 से मल्टीप्लाई किया. नहीं सर, वहाँ पे मतलब डेसिमल के बाद बार जिसमें बार नहीं है वो ऐसा सिर्फ एक ही डिजिट है, तो वहाँ से फिर 10 से किया. हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा वाला 1.462 एग्जांपल है, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है? 2. तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100.
Okay, thank you, चलो, sir. वेलकम। आरुष, सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सेकंड इसमें 46 मतलब 4 और 6 एक साथ लेफ्ट में लेना है कि अकेले अकेले लेना है, एक मतलब साथ 1 2 3 सेक्शंस होंगे? एक साथ एक साथ ओके। मंथन, सर मेरी डाउट ये है कि हमें हमेशा ये सिंप्लीफाई करने की जरूरत है कि अगर चलेगा अगर हम सिंप्लीफाई ना करें तो? we are solving objective questions, उसमें 4 options रहेंगे, so if the option that's a simplified form, you have to simplify. If it's not in the simplified form, so you can rest it like this. Sir, so in the question it will be said that you have to, it's in the simplified form or it's in the full form? We will be having objective question, जो वाला option होगा वो वाला option mark कर देना, अगर objective simplify करके होगा तो simplify वाला mark कर देना, then simplify होगा तो simplify मत करना। Okay sir. अभिनव, सर मुझे थोड़ा आंसर्स बताना सर, मेरे को देख के मैं एक बार बोलूंगा। सर पहले वाले का आंसर 1895 बाय 990। exactly. सर सेकंड वाले का आंसर 1316 बाय 900। exactly सही है। ओके सर, थैंक यू। अभिनव के सर हो गया। निशिता, सर सेकंड का आंसर 1316 बाय 900 है ना? exactly. ध्रुव काले, Sir, can you tell me how you solved the second? Because I got the wrong answer. क्या किया मुझे बता, what did you do? 14476 by 90. क्या किया, क्या आंसर? आई डोंट वांट टू नो, मुझे किया क्या तुमने वो तो बता। पहले वो 100x लिया, बाद में डेसिमल के लेफ्ट साइड पे 146.2 बार। एग्जैक्टली, आगे क्या किया? और आई थिंक कि नेक्स्ट स्टेप में मेरा कुछ तो मिस्टेक किया क्या वो तो बताएगा मुझे, मिस्टेक हुआ, मिस्टेक बाद में किया। मैंने 10,000x लिया। 10,000x नहीं, 10 से मल्टीप्लाई करना है बाद में। अच्छा, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है ना, 2, इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, थैंक यू। अरे बहुत ज्यादा डाउट्स नहीं आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? परी, परी, Yes, sir. So, first वाला 21.05 बार। सर मुझे उसका गलत आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है आपको? सर फर्स्ट स्टेप 10x is equal to 210.5। एग्जैक्टली, नेक्स्ट। सर फिर 100x is equal to 210.55। 0.55। अच्छा, आपने 10x को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 210 को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे? करोगी सॉरी। ओके, यार जल्दी जल्दी बहुत डाउट्स हो रहे हैं। कबीर, तो आंसर करना। कबीर कहाँ गया? आदित्य दुबे, हाँ सर, मुझे आंसर 1356 बाय 900 आ रहा है। मुझे कैलकुलेशन बता दे, क्या कैलकुलेशन की तुमने? सर पहले तो जैसे आपने बोला कि पहले तो x इज इक्वल टू 1.46 और 62 और 2 के ऊपर बार है, फिर उसके बाद 10x। एक से मैंने सॉल्यूशन शेयर नहीं किया क्या? वेट वेट, मैं शेयर कर देता हूँ एक से। सर एक सेकंड रुक जाओ, मैं सॉल्यूशन शेयर कर। स्क्रीन देखो एक बार सब लोग। स्क्रीन देखो, फिर जिसको डाउट आया दे कैन रेज योर हैंड्स।
प्रीति सर वो 100x कैसे आया सर? कौन से क्वेश्चन में, कौन से पार्ट में? सर थर्ड क्वेश्चन में। कितनी डेसिमल की कितनी डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं हो रही हैं? सर 2। इसलिए 10 की पार्ट 2 से मल्टीप्लाई किया। सर मेरे को लगा एक ही होगा, इसीलिए मैंने 10 डाला था, सॉरी सर। कोई बात नहीं। आई गेस अब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। पूर्ति, हाँ पूर्ति। Sir, how should we find out the answer if it would be 1.462? 62 would be in bar. तो कितनी डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है डेसिमल के बाद? Sir, what? ठीक से आवाज नहीं आ रहा है। How many digits does not have bar in the decimal in your question? Sir, 2 digits. अरे आपने तो बोला 4 के ऊपर बार नहीं है, तो जैसे 2 कहाँ से हो गई? Sir, अगर वैसा हुआ तो? हाँ तो उसी के बारे में तो वी आर टॉकिंग ना, योर क्वेश्चन ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट। कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, कितनी के ऊपर बार नहीं है? Okay, sir. कितनी के ऊपर बार नहीं है? Sir, दो digits पे नहीं है after अरे point. व्हाट इज योर क्वेश्चन, टेल मी। सर अगर हाँ 62 के बाद अगर नहीं क्वेश्चन बता दे, ये क्वेश्चन है मेरा। 1.4 के आगे कुछ बोलेगी? हेलो। यस सर। हाँ 1 पॉइंट के आगे बोलेगी, 1 पॉइंट के आगे। 1.4 अगर 62 पे बार होगा तो? हाँ तो तेरे वाले क्वेश्चन में कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है? 3। कौन कौन से डिजिट्स है जिस पे बार नहीं है, समझाना मुझे। 3 कौन कौन सी मिल गई तेरे को, बता दो। 1, 4 and 6। बट तेरे वाले क्वेश्चन में तूने 6 और 2 के ऊपर बार लगाया है ना। सर नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि अगर वैसा हाँ क्वेश्चन तो रहा दैट्स तो? व्हाट। हाँ तो वही तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तेरे वाला जो क्वेश्चन में अगर तू पूछ रही है अगर जो हुआ तो, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। ओके, in your question how many digits in the decimal does not have bar? सर आप अलग बोल रहे हैं। listen तूने क्या किया, 1.4662 के ऊपर बार लगा दिया। करेक्ट? हाँ। करेक्ट, 62 के ऊपर बार है। इज दैट फाइन? ओके। अरे क्या हो गया, इज दैट फाइन? यही करना था ना, 62 के ऊपर बार लगाना था। क्या हुआ, टेल मी। ठीक है, we'll do it later, that's fine. हाँ वही तो बोल रहा हूँ, one digit, she's telling me two digits. अनुष्का, हाँ अनुष्का। हाँ सर, ये जो आप सिखा रहे हो वो मिक्स रिकरिंग है? ये मिक्स्ड करेंगे क्योंकि इसमें कुछ पार्ट रिपीट हो रहा है, कुछ पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है इन द डेसिमल नंबर। हाँ। किसी और को डाउट है, आगे बढ़े? चलें आगे। One digit do not have bar, no doubts. Sir, can we solve her question? That's fine, you can do। मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे, करने की जरूरत नहीं है, वो सेम क्वेश्चन होंगे। तो करो इसको, फीडबैक के फॉर्म में कन्वर्ट करो।
सब लोग करो p/q फॉर्म में कन्वर्ट फटाफट। इस बार 6 के ऊपर बार है। यस प्रिया। तो मुझे ये डाउट आ रहा था, जो क्वेश्चन अभी आपने लिखा है ना, उसमें सेकंड स्टेप में 1 4 6 ऐड करना है कि दोनों 6 और 2 दोनों ऐड करना है? सबसे पहले स्टेप में क्या किया तुमने मुझे बताओ। तो मैंने 10x = 14.62 लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में 14.62 100 हाँ। नेक्स्ट में आप तो किससे नेक्स्ट मल्टीप्लाई स्टेप में मैंने नेक्स्ट वेट मैं बोलूं वेट। नेक्स्ट में कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है? 2 डिजिट्स के ऊपर, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। यस सर। हाँ अभिनव के। सर उसका आंसर मुझे 1448/90 आ रहा है। ठीक, कितना है? 1448/90। यस सर। अभी किसी ने 90,000 क्यों लिख दिया है? ठीक है देखते हैं। ओके सर। सर म्यूट कर दो मुझे। कर दो। आंसर इज 1448/990। समृद्धि गलत है, मथन गलत है, अनमोल सही है। 1448/990। हाँ सर मुझे भी वही आया था सर क्या हुआ ना, मेरे को पहले 10 आया फिर मुझे 1000 आया। तो सर मैंने सोचा कि 990 कैसे होगा, उसके लिए मैंने 1000 को 100 कर दिया, उसके लिए 90 आया नीचे। सही। ओके आदित्य दुबे। सर मुझे 132,364/90,000 आ रहा है। गलत आ रहा है। क्या किया सबसे पहले बताओ। सर मैंने पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया। हाँ तो 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? 14। 14.626262 हाँ। ठीक है 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1462 माइनस 146.262। अबे 1462 पॉइंट 100 इधर तो मल्टीप्लाई होगा। हाँ 146.262। अबे 1462 पॉइंट 100 से मल्टीप्लाई किया ना तूने फर्स्ट इक्वेशन को। ओह सॉरी सर। सुप्रीति सर क्या करना है इस सब में? क्या कर रहे हैं अभी तक हम क्वेश्चंस में? सर वो पहले वाला ही क्वेश्चन है फिर ये। हाँ तो बार चेंज हो गया ना, पहले 1 के ऊपर बार था, अब 2 के ऊपर बार है। ओके सर। हाँ मंथन। सर समझ नहीं आया, 1316 ही आ रहा है। मैं अगर 1000 100 कर रहा हूँ। 1000 माइनस क्या कर रहा है? 100 100 आया कहाँ से तेरा? सर 6.2 Angad, you are not audible. So the answer will, sir, the equation 2 will be 1000x or 100x. पहली इक्वेशन क्या आएगी तेरी? 10x is equal to 14.6262. अगली इक्वेशन क्या आ रही है तेरी?
100x is 1000x is equal to 1462.6262. करेक्ट, सही है। यश गुप्ता, सर आंसर 1448 upon 990 है ना? करेक्ट। आदित्य दुबे, हाँ सर, अभी मेरा 1448 by 990 आ रहा है। अरे बधाइयाँ। हाँ शौनक, नहीं सर, वही था कि आंसर क्या था, 990 ही था ना? हाँ 999। हाँ। दीवा, सर मेरा 1448 by 990 आ रहा है। करेक्ट। कोई और? आंसर इज 1448 अपॉन 990। आगे बढ़े बाबा, कब तक ही करोगे, हो गया खत्म। अनुष्का, अनुष्का, सर मेरा आंसर 1316 अपन 900 आ रहा है। तो तुम मुझसे सॉल्व करवा के मानोगे ना? एक भी क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करोगे तुम लोग। अभी थोड़ा अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है क्वेश्चन का, डोंट टेल मी, ओके? आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। मंथन तू मानेगा नहीं क्या? हाँ बोल। सर मुझे समझ आ गया सर। सो इसमें हमें 100 का स्टेज लाना ही नहीं है अगर 2 नंबर हो तो। 100 का स्टेप नहीं है, मतलब क्या है तेरा? अरे सर मतलब 100x लाना ही नहीं है ना इस सब में, 100 क्योंकि 100 हमारे क्यों लाएंगे? पास क्योंकि 3 डिजिट है ना, तो एक बार 10 एक बार 100 आएगा। तो एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाँ सुप्रीति, सर उधर 2 पर बारे तो 100 आना चाहिए ना सर? क्या करूँ मैं तुम लोगों का, मुझे बताओ पर। सर उधर 2 नंबर पर सबसे बारे तो पहले जितनी डेट्स के ऊपर बार नहीं है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ मयंक, मयंक बोल दे। हाँ अनुष्का, सर उधर 10x क्यों लिया आपने? आपको पुराने 3 एग्जांपल समझ में आए? हाँ। हाँ तो मुझे कौन सा एग्जांपल डिस्कस करोगे आप मेरे साथ, बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड से पहले। हेलो। हेलो, हाँ हाँ अब मुझे बताइए आप कौन सा एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरे साथ? सर अभी आपकी वो कर रहे हैं वो। नहीं नहीं नहीं, पहले से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में से एक डिस्कस करना पड़ेगा। तो जल्दी से टेल मी which example you want to discuss, first second या third? अनुष्का जल्दी, सेकंड या थर्ड या फर्स्ट? यू हैव 3 सर मुझे choices। ये एग्जाम्पल समझ नहीं आया। इससे पहले आपको पीछे जाना पड़ेगा ना समझने के लिए, तो जस्ट टेल मी ना कौन सा वाला डिस्कस करना है आपको। फर्स्ट। फर्स्ट, ठीक है। x इक्वल टू, आपने लिख लिया एग्जांपल? हाँ। हाँ तो सी इट, x इक्वल टू 4.16 बार। अब इसमें कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है? नहीं है, नहीं है डेसिमल पार्ट में। हेलो हेलो, कितनी डिजिट्स डेसिमल पार्ट में, कितनी डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है? एक। इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई किया। हाँ। दोबारा 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया तू बता? क्या? दोबारा 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, यू टेल मी। सर क्योंकि 6 के ऊपर बार है। 1 डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है। हाँ। नाउ लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ। हाँ, x इक्वल टू 1.46 बार। इसमें सबसे पहले मैंने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, टेल मी। क्योंकि डेसिमल के बाद में 2
एक डिजिट सॉरी एक डिजिट पे बार नहीं है। एग्जैक्टली अब तो ये क्वेश्चन बना गई। अब मैंने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया नेक्स्ट स्टेप में? सर 1000 हाँ तो वो तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 आया ना, हाँ तो क्यों आया वो 1000? 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने? सर ये मुझे नहीं समझ आया। पिछले वाले पे तो आपको समझ में आ गया था कि 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया था। हाँ क्यों किया था पिछले वाले में 10 से मल्टीप्लाई? हाँ सर 100 को 100 2 डिजिट्स पे बार है। इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर ओके। हाँ हाँ सुकृति। सर तो हम लोग ने इस सम में जिस पे बात नहीं उसको क्यों लिया सर? कोई बात नहीं, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। हाँ दिशिता। सर ऐसे वाला सांस मतलब जहाँ 2 डिजिट्स पर बार है दोनों डिजिट्स को अलग अलग हैंडल करना है कि एक ही साथ नहीं हैंडल एक करना? साथ एक साथ एक साथ। ओके सर। किसी और कोई डाउट? सबसे पहले उससे मल्टीप्लाई करेंगे जितने के ऊपर बार नहीं है, देन मल्टीप्लाई बाय द 10 टू द पावर जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है। किसी को कुछ है? खत्म करें आज का। नेक्स्ट फटाफट एक लास्ट पॉइंट पढ़ लो, डिविजिबिलिटी लिख लो सबके सब। डिविजिबिलिटीज। इसको जहां प्रॉब्लम आए बोलते जाना। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2। अगर नंबर ऑन द यूनिट प्लेट्स इज इवन, दैट मींस नंबर इज divisible by 2, ठीक है। नेक्स्ट divisibility by 3, sum of the digits. If the sum of all the digits of a number is divisible by 3, the number is also divisible by 3. For example, आपको दे रखा है 871423 तो 8 plus 7 plus 1 plus 4 plus 2 plus 3 या तो आंसर है 25 and 25 is not divisible by 3, hence this number is also not divisible by 3. मुझे प्रॉब्लम है। अबे मुझे प्रॉब्लम है तो क्या अगले साल जागेगा क्या आदित्य? 723 के बाद आता है पहले आता है? नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 4। देखो ये 2, 4, 8, 16 ये सारे सिमिलर भी हैं। इन द केस ऑफ 2, ठीक है, आपको खाली यूनिट डिजिट देखनी होती है, लास्ट वन डिजिट ऑफ द नंबर। इन द केस ऑफ 4 यू हैव टू सी लास्ट 2 डिजिट्स। फॉर एग्जांपल 15632 दे रखा है तो लास्ट 2 डिजिट्स मतलब 32। अगर 32 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल। अब सेम देखो 2 आया, 4 आया, नेक्स्ट आएगा 8। 8 में क्या होगा? लास्ट 3 डिजिट रहेगी। अब 8 का मैं बोलूँ 8 के बाद क्या आएगा? 16। 16 में क्या होगा? 16 में क्या होगा? लास्ट 4 डिजिट्स। 2 में लास्ट 1 डिजिट, 4 में लास्ट 2 डिजिट्स, 8 में लास्ट 3 और 16 में लास्ट 4, ठीक है। तो ये पैटर्न चलता है, पैटर्न आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 5। 5 की डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट नंबर शुड बी 0 और 5। नंबर ऑन द यूनिट प्लेस शुड बी 0 और 5 फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ 5, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 देख लो, 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग सुन लेना, डिविजिबिलिटी ऑफ 6। 6 को ब्रेक करना है आपको दो ऐसे नंबर में जिनका SCF 1 हो। You have to break 6 in two numbers such that their SCF is 1. Okay, so number we got is 2 and 3. So if a number is divisible by 2 and 3 both, then the number is divisible by 6. If the number is divisible by 2 and 3 both, then the number is divisible by 6. 6 तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो।
6 तक किसी की डिविजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, लेकिन आस्क। 7 समृद्धि। हाँ समृद्धि। Sir, in this can we just add all the digits and see whether if it's divisible by 3 and then see the last number? In which divisibility of which number? In divisibility of 6, can we just add all digits and see if it's divisible by 3 and then see the unit digit? हाँ that is same thing ना, 2 और 3 से चेक करना है, कैसे भी करो, आपकी मर्जी है। Okay, sir. Welcome. हाँ अभिनव। सर मुझे ना डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में सर अगर कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल होता है और 2 से डिविजिबल नहीं होता तो सर वो 6 से डिविजिबल हो सकता है? नहीं, दोनों से होना चाहिए तभी 6 से होगा। ओके सर, थैंक यू। अब देखो 7 की सुन लो सब लोग। 7 में क्या करना है? सर म्यूट। 7 में क्या करना है, देखो आपका नंबर था 945 आपका नंबर था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट, आप उसको क्या करो, साइड में कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 थी, ठीक है, यहाँ पे 5 था तो आपने माइनस करा, आपका 5 हटा दिया तो नंबर आपका क्या बचा, 94। अब 95 में से आप 94 में से आप माइनस करो ट्वाइस द यूनिट डिजिट। 94 माइनस ट्वाइस द यूनिट डिजिट। अब जो भी अगर आपका नंबर आया दैट इज डिविजिबल बाय 7, तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखना 945, ठीक है, 945 में से आपने क्या किया, लास्ट यूनिट डिजिट थी आपकी 5 को हटा दिया, नंबर क्या बचा, 94। 94 में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया, ट्वाइस द यूनिट डिजिट दैट इज 10, तो 84। अब अगर 84 7 से डिविजिबल है, टोटल नंबर 7 से डिविजिबल है। ओके हाँ अभिनव। सर मुझे समझा नहीं कि सर आपने 94 माइनस के बाद 5 यूनिट डिजिट को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ये तो मेथड है ना। फिर सर जो आपने जो इक्वल टू 84 लिखा है वो इक्वेशन है कि वो इन दोनों का रिजल्ट है? 94 माइनस 10 84, इसमें इक्वल टू क्या पूछना है? ओके सर, थैंक यू। फॉर एग्जांपल एक नंबर चेक करो, 4592 7 से डिविजिबल है या नहीं है, सब लोग। 4592 4592 चेक किया सबने? 4592 7, अबे 7 पढ़ रहे ना मंथन, डिविजिबल बाय व्हाट, 7 की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो 7 का ही दूंगा ना एग्जांपल। डिविजिबल है एग्जैक्टली। सी 4592 नंबर था, हमने क्या किया, यूनिट डिजिट हटा दी, तो 459 माइनस ट्वाइस द यूनिट डिजिट, सो 2 टू द 4, तो 459 माइनस 4 तो क्या आया, 455। अब 455 का अगेन यू कैन चेक, तो 455 नंबर था, यूनिट डिजिट हटा दी, तो नंबर क्या बचा, 45। 45 माइनस ट्वाइस द यूनिट डिजिट, तो 45 माइनस 5 into 2, तो नंबर क्या आया, 35। हाँ 35 is divisible by 7, that's why 455 is divisible by 7, that's why 4592 is divisible by 7। Priya? So, what if the unit digit is 0? हाँ तो 0 into 2 0। So, sir, how will we subtract? हाँ तो अरे 5 माइनस 0 कितना होता है, 5. हाँ तो नंबर विल कम, जो भी नंबर आएगा वो आ जाएगा। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ओनली, 0 का सब्ट्रैक्ट करने से कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा, तो यू कैन डायरेक्टली चेक द नंबर।
Okay. So Preeti, सर आपने 455 को आगे डिवाइड कर दिया ना, इसीलिए आपको 35 मिला। पर मैंने 455 को डायरेक्टली 7 से डिवाइड कर दिया, तो चलेगा क्या सर? that is your wish, absolutely fine. कुशाग्र, सर आपने 455 के बाद इसको और स्मॉलर किया ना? exactly. ओके सर, थैंक यू। एक और नंबर दे रहा हूँ, चेक करो। टू फाइव फाइव एट फाइव 25585। हाँ दिशिता, Sir, can you please repeat the number? 25585। Sir, Yes, sir, divisible by 7 ही ना? हाँ 7, 25585, 25585। Thank you, sir. Welcome. आंसर बता दो कोई, यस और नो। यस सर, अरे डिविजिबल है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, 2558 माइनस 5 इंटू 2, सो नंबर रिमेनिंग नंबर इज 2548। बाद में क्या आएगा, 254 माइनस 8 इंटू 2, तो नंबर रिमेनिंग इज 238। बाद में क्या आएगा, 23 माइनस 8 इंटू 2, तो नंबर रिमेनिंग इज 7। हेंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 7।
हेलो वेट अ मिनट एवरीवन, ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो यार, if someone is sharing the screen. सी मैंने शेयर किया है, सब लोग देख लो, बाकी लोग डाउट्स पूछ लो। हाँ Yes, शर्मा। sir. No, nothing, sir. Sorry. अरे यार चलो बात। अभिनव के सर मुझे तो आया कि वो डिविजिबल नहीं है। चेक कर कैलकुलेशन भेज दिया मैंने। ओके सर। आरुष सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे ये आया कैसे 238 एनोटेशन से एक बार बंद नहीं करूँ, लोग बहुत स्टार्ट हो जाते हैं इसके ऊपर। हाँ बोल। हेलो हाँ बोल, व्हाट इज योर डाउट? हाँ सर, मेरा डाउट है कि ये हाँ 5-3 आंसर कैसे आया 7 का? 5-3 कहाँ दिख रहा है क्वेश्चन में? मुझे दिखा 5-3। नहीं 5-3 मतलब सॉरी 5-2-5-5-8-5 का मतलब उसका आया कैसे? ये स्क्रीन पे देख रहा है तू कैसे हो रहा है ये? हाँ हाँ तो पूछना, स्टेप समझ में आई क्या करना है पहले तो वो बता, पता चला नहीं चला? नहीं यार तुम लोग इससे पहले 2 एग्जांपल्स कैसे किए थे फिर तुमने? हेलो हेलो हाँ, इससे पहले वाला एग्जांपल कैसे किए थे तुमने? पहला वाला एग्जांपल हाँ सर मैं बाहर गया था इसके लिए पता नहीं। अभी बाद में, कल डाउट्स क्लास है, कल यू हैव टू आस्क। मंथन Or can you give me the limitation till what should we keep on dividing, subtracting the number until it's you your get wish, it it's nearest your to it? wish, it's your wish, it's totally your So wish. if I get 254, it's like it's okay if I stop over there, or I need to really go down It's more? totally your wish. Okay, तो कहीं तक भी, कहीं भी समझ में आ रहा है तो you can stop it. Okay, sir. Thanks for. अभिनव के सर मैंने कैलकुलेशन किया सर, पर भी नहीं आ रहा है। हाँ तो तेरे सामने स्क्रीन शेयर की हुई है ना, चेक कर क्या गलती हो गई है। सर मेथड तो ये था ना सर कि जो भी हम लोग को पहले जो यूनिट डिजिट को हम लोग को पहले मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर जितना आता है उसको डिवाइड करना है ना सर 7 से। डिवाइड नहीं करना, माइनस। अबे क्या कुछ बोल रहा है तू? डिवाइड, जो यूनिट डिजिट है उसको हटाना है, जो भी नंबर बचता है उसमें से ट्वाइस द यूनिट डिजिट सबट्रैक्ट करते हैं। तो देख 25585 था, 5 को हटाया, अब बचा क्या 2558, तो यू हैव टू सबट्रैक्ट 5 into 2 with 2558, तो बचा क्या 2548। यस सर। ओके सर, समझ गया। हाँ ठीक है, चलो 7 का हो गया। 8 का मैंने आप लोगों को बता दिया है। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? यू हैव टू चेक द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर्स। इफ लास्ट 3 digits are divisible by 8, this means whole number is divisible by 8. Okay, divisibility for 9 की divisibility क्या होती है? Again, the sum of digits is divisible by 9, then the number is divisible by 9. Sum of digits is divisible by 9, then the number is divisible by 9. हाँ मंथन? सर हमें स्कूल में ये सिखाया गया है कि 8 में आपको लास्ट 3 नंबर में देखना है कि वो अगर 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो कैन वी डू इट दैट वे? हाँ, that is fine. Last 3 numbers, like you have to find if they are nearest to 4. नियरेस्ट टू 4 चेक कर, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? बस देख लो, अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर डिवाइड है। Okay sir, thanks. हाँ अभिनव के
सर मुझे जरा जैसे आपने बोला था कि 2 का डिविजिबिलिटी लिस्ट में लास्ट में अगर वन 2 से डिविजन हाँ हाँ लास्ट का डिविजिबिलिटी 4 होता में है तो लास्ट 2, 8 में लास्ट 3, 16 में लास्ट 4। सर ऐसे तो हम लोग 3 में 3 में एडिशन था, फिर 9 में एडिशन था, ऐसे करके सर हम लोग 27 में भी एडिशन ही होगा क्या? एग्जैक्टली सेम। ओके सर। ठीक है, तो 9 तक क्लियर है लोगों? 9 तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो। सर म्यूट कर दो मेरे को। ओके हाँ, 9 तक if anyone is having any problem they can ask me. 9 तक डिविजिबिलिटी, these are easy only, कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं है। People just wait a minute यार, मेरा तो इंटरनेट हैंग हो रहा है, वेट। ठीक है, लेट्स फाइन। व्हाट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 12? किसी को पता है? If a number is divisible by 4 and 3, if a number is divisible by 4 and 3, the number is also divisible by 12. लिख लो। If a number is divisible by 4 and 3, the number is also divisible by 12. If a number is divisible by 4 and 3, the number is also divisible by 12. आदित्य बोल। सर मैं आपको जो मैं बताना चाहता हूँ बता नहीं पा रहा हूँ चैट सेक्शन के साथ। तो अभी छोड़ दे यार, अभी वैसे भी मुझे कल पूछ लेना, कल जूम लेक्चर है, कल एक बार आ जाना। ओके ओके सर। हाँ मंथन। सर एक्चुअली चैट डिसेबल हो रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कि आप नहीं हो मीटिंग में। मैं मीटिंग में नहीं हूँ। हाँ सर, मैं तभी लिख रहा हूँ कुछ, मैंने यस किया और अभी मैं एंटर कर रहा हूँ तो दिखा रहा है निशान जैन इज नॉट इन दिस मीटिंग। ऐसे कैसे हो गया? मैं तो यही हूँ। पता नहीं सर, आप होस्ट भी हो तो फिर भी वो दिखा रहा है कि निशान जैन इज नॉट इन द मीटिंग। सी मैंने अभी टेक्स्ट किया सबको हाय करके, आया सबके पास? हाँ सर आया, पर अभी हम लोग हाँ बेच सकते हैं, अभी बेच सकते हैं सर। आई डोंट नो, टेक्निकल एरर होगी, कुछ होता रहता सर अभी बेच सकते हैं, पहले पता हाँ, नहीं आपने हाय कि पहले नहीं। हाँ ध्रुव बोल। हाँ सर, आपने ये डिविजिबिलिटी ऑफ 12 में हम्म 4 3 का किया, वैसे हम लोग 6 और 2 का कर सकते हैं। नहीं, नंबर शुड बी को प्राइम। जो भी नंबर में यू आर ब्रेकिंग, नंबर द एचसीएफ ऑफ नंबर शुड बी 1। हाँ ओके, थैंक यू। रीवा। Sir, is there divisibility of 11? Yes. अरे यार एक्चुअली ये I cannot share the screen. Wait. I'm telling you. I'm sharing the screen. सब लोग स्क्रीन देखो। See the divisibility of 11. Okay. 11 में क्या होता है? देखो फॉर एग्जांपल एक नंबर था 10 का, तो इट्स फाइन, सबको पता है। एक नंबर था 749859। आपको क्या करना है? सम ऑफ डिजिट्स ऑड प्लेसेस निकालना है एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, और उन दोनों को क्या लेना? डिफरेंस। इफ द डिफरेंस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11, दिस मींस द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। सब लोग एग्जांपल देखो स्क्रीन पे। sum of digits at odd places minus sum of digits at even places, and the difference should be a multiple of 11 or 0. Then the number is divisible by 11. हाँ ध्रुव। सर सॉरी, मैं हैंड लोअर करने को भूल गया। हाँ रीवा। सर कुछ नहीं। लो हाथ क्यों खड़ा करके रखते हो? कुछ नहीं होता तो। अक्षत। हाँ सर, वो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 उसमें ए में कंसीडर द नंबर एज 749859। क्वेश्चन मेरे सामने है, तो आंसर मुझे बोलेगा। नहीं डाउट क्या है? सर उसमें ये क्या लिखा है कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, तो उसमें लिखा है 984।
और उसके हाँ बाद -5 + 9 + 7 एग्जैक्टली टेल मी। सर ऑड तो प्लेस और प्लेसेस मतलब फर्स्ट प्लेस पे क्या है 9, थर्ड प्लेस पे क्या है 8, फिफ्थ प्लेस पे क्या है 4, तो 9 + 8 + 4। इवन मतलब सेकंड प्लेस पे क्या है 5, फोर्थ प्लेस पे क्या है 9, सिक्स प्लेस पे क्या है 7। ओह थैंक यू सर। हाँ दिशिता। सर डिविजिबिलिटी टेस्ट में सिर्फ 11 चाहिए कि उसके मल्टीपल्स भी चलेंगे? नहीं नहीं 11 बहुत है। ओके सर। हाँ रीवा। हेलो रीवा। अभिनव। सर हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 13 का हम लोग डाउट्स पूछ सकते हैं? हाँ पूछ। सर उधर गाइस जो देखो 13 में देखो जैसे 7 में हम माइनस ट्वाइस करते थे ना, 7 में हम क्या हाँ करते सर। थे यूनिट डिजिट में से ट्वाइस माइनस करते थे, ठीक है। हम्म, यहाँ पे क्या करेंगे हम यूनिट डिजिट 1 to 4 और जो भी नंबर बचा हुआ है उसमें ऐड कर देंगे। फॉर सर एग्जांपल देखो एक नंबर लिया है ना 3146, हमने क्या किया जो भी यूनिट डिजिट था उसको 4 टाइम्स किया और इनटू द 24 और बाकी रिमेनिंग नंबर क्या था 314 उसमें ऐड कर दिया, तो नंबर विल बिकम 314 प्लस 4 टाइम्स 6 तो 338। अगेन 338 को हमने क्या किया जो यूनिट डिजिट था उसको 4 टाइम्स किया 4 into 8 और बचा हुआ नंबर क्या था 33, 33 प्लस 8 4 32 आंसर 65। क्या डाउट पूछ। सर इधर लास्ट में 65 आया तो सर उसको हम लोग 65 को फर्दर डिवाइड फर्दर ऐसा प्रोसेस। जरूरत नहीं है हमें पता है 65 डिविजिबल है, 13 की टेबल आती है ना। हाँ सर। सर एक और डाउट है हाँ बोल जल्दी जल्दी। सर, एक बार थोड़ा इसको छोटा करो ना। डाउट तो बोलते यार। सर डाउट थोड़ा उस साइड लिखा है ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं तो बता। सर, थोड़ा राइट में। बोल। सर उधर कुछ तो लिखा है ना सर, मुझे समझा नहीं वो। ट्रंकेटेड नंबर देख, ये जो फॉर एग्जांपल 3146 था, हाँ सर। जब मैंने 6 हटाया तो एक नंबर बचा ना 314। यस सर। तो 314 इज कॉल्ड एज ट्रंकेटेड नंबर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। ओके सर। प्रिया। सर मुझे डिविजिबिलिटी ऑफ 13 समझ में नहीं आया। एग्जांपल देखा आपने एग्जांपल में क्या हो रहा है। 3146 था तो हमने क्या किया 314 को अलग किया और जो 6 बचा था उसको 4 टाइम्स करके ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल 338 था तो हमने 8 को अलग किया और जो 33 बचा था उसमें 4 टाइम्स 8 करके ऐड कर दिया। हाँ रीवा। सर हमने 4 को 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया? जो भी यूनिट डिजिट होती है उससे मल्टीप्लाई किया था। 338 में यूनिट डिजिट क्या है 8, जो भी यूनिट डिजिट होती है उससे 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 338 में यूनिट डिजिट 8 है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। ओके सर। चलो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा और पढ़ लेंगे 13 वगैरह की डिजिबिलिटी। ठीक है चलो एवरीवन बाय, गुड नाइट।